Hello students, welcome to my channel Chemistry is Fun with Braj Patel. I am Brijendra Kumar Patel, PGT Chemistry. Welcome you all. In today's session, we will see Vesper theory. This theory is very important for class 11 as well as for competition purpose, because the structure of molecule or the geometry of molecule can be explained by using this theory. So let's see. So in this session we'll try to know first the introduction of Vesper theory, then second thing types of repulsion between orbitals, third point we will see here postulates of Vesper theory, and then structure of molecules having only bond pairs, then we will see structure of molecules having bond pairs and lone pairs, and last we will see limitations. So let's start our discussion. So first is introduction to valence bond theory or Vesper theory. First, introduction of Vesper theory. So the full form of Vesper theory is valence shell electron pair repulsion. It means this theory is based on the repulsion between electron pairs which are present in valence shell. So electron pairs, there are two types of electron pairs, lone pair and bond pair. So we will see later about these pairs of electrons. First, the introduction of this valence bond theory. So Lewis concept, that concept was good, but that concept was unable to explain the shapes of molecule, because in my previous video we have seen the different Lewis structures or Lewis symbols of atoms and molecules, but there it was not explaining the shape of molecule, means whether the molecule is linear, trigonal, angular, spherical, what is the shape of molecule, it was not explained by Lewis concept. So this theory provides a simple procedure to predict the shape of covalent molecules. First, this theory was proposed by Sidgwick and Powell in year 1940. Okay, and later it was developed and redefined by Nyholm and Gillespie in year 1957. So here, this is the introductory part of valence bond theory. Okay, then we will see the type of repulsions according to index. The second point is type of repulsion between orbitals. So the order of type of repulsion. So before starting types of repulsion, let me tell you about lone pair and bond pair. Okay, so see, if we are going to form NH3, okay, what we are going to form? NH3. So in NH3 we know the atomic number of nitrogen, it is 7. So the configuration will be 1s2, 2s2 and 2p3. So according to the name, first we will see valence shell. So which one is valence shell? Outermost shell is known as valence shell. So here outermost shell, it is second. Why? Because here see, in structure of nitrogen, here 1s2 it will be present, in second orbit 2s2 and 2p3 will be present. So second is the valence shell. So here we will take 2s2 and 2p3. So the structure of 2s2, this one is like this. This is 2s2 and this is 2p3. So here in 2s2 we know 2 electrons are present, and in 2p3 1, 2, 3 electrons are present. So here see how we will define lone pair and bond pair. So nitrogen, it is sharing its 3 electrons with 3 hydrogen. How? See, very simple, like this. First electron of hydrogen, second electron of hydrogen, third electron of hydrogen. So 3 electrons from 3 hydrogens, they are shared like this. Okay, so these 3 pairs are known as bond pair, in short BP. BP means bond pair. So what is bond pair? Bond pair are the pair of electrons which are involved in bond formation, and the remaining 2 electrons, these 2 electrons are not participating in
bond formation. So these two electrons are known as lone pair, LP. LP means lone pair. So very simple. In valence cell, if we are talking about lone pair and bond pair, then only in valence cell inner electrons will not take into account. We will see only outermost electrons. Okay, so in outermost electrons, the total number of electrons which are taking part in reaction are known as bond pairs, and the remaining electrons are known as lone pairs. So since these electrons are negatively charged, we know electrons are negatively charged, so due to the negative charge they will repel each other, so there will be repulsion between lone pair and bond pair. That's why this theory is known as valence cell electron pair. Electron pair means they may be lone pair, they may be bond pair, okay, or they may be both. So the pairs of electron, they have repulsion, and these electrons are present in valence cell. That's why this theory is known as valence cell electron pair repulsion, or in short Vesper theory. Okay, so let's see the type of repulsion between orbitals. Lone pair and lone pair. If only lone pairs are present, then between lone pair and lone pair repulsion is maximum. Between lone pair and bond pair repulsion is minimum, and between bond pair and bond pair repulsion is least. Okay, so the order of repulsion is bond pair and bond pair, they have less repulsion. Lone pair and bond pair, they have moderate repulsion, and lone pair and lone pair, they have highest repulsion. Okay, so this is the order of repulsion. In short, we will write LP-LP, LP-BP, BP-BP. Okay, why it is happening? Because the shape of bond pair, this shape, lone pair is like this. This is LP, and bond pair, so bond pair's shape is like this. So if there are two LPs means like this. If there are two LPs, then they will repel each other, and between these two repulsion will be minimum, and between these two repulsion will be moderate. Okay, so these are the structures of LP and BP. We will see further how these structures are. Okay, so see, after the type of repulsion between orbitals, now we will see the postulates of Vesper theory. So after the introduction and repulsion between orbitals, postulates of Vesper theory की इसमें हम कौन कौन से टर्म्स यूज करेंगे, इसका एक्चुअली प्रिंसिपल क्या है. फर्स्ट, द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम. इलेक्ट्रॉन पेयर्स मतलब लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स. तो बॉन्ड पेयर क्या हो गया, जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड बनाने में, और लोन पेयर क्या हो गए, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं. और हमको कौन से इलेक्ट्रॉन लेना है, सिर्फ और सिर्फ वैलेंस सेल की. हमें अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए, सिर्फ लास्ट सेल. सेकेंड पोस्टुलेट इज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस सेल रिपील वन अनदर सिंस देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर नेगेटिवली चार्ज. सो यह हमें मालूम है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज. तो जब नेगेटिव चार्ज होगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स में क्या होगा, रिपल्सन होगा. तो इसलिए इलेक्ट्रॉन के जो ऑर्बिटल्स हैं, जो पेयर्स के ऑर्बिटल्स हैं, उनमें क्या होगा, रिपल्सन होगा. एंड these pair of electrons tend to occupy such positions in space that minimize repulsion and thus maximize distance between them. कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स स्पेस में इस तरीके से अरेंज रहेंगे कि उनके बीच रिपल्सन मिनिमम हो. मिनिमम रिपल्सन कब होगा, जब उनके बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम होगी. क्योंकि ये सिंपल सा है, आप किसी एक बेंच में यदि दो बंदे को बैठना है तो जितना दूर दूर रहेंगे उनके बीच में रिपल्सन उतना कम होगा, धक्का मुक्की उतनी कम होगी. और यदि दोनों बिल्कुल पास पास बैठ जाएं तो उनके बीच में रिपल्सन ज़्यादा होगा. तो सिंपल सा है कि डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी ऑर्बिटल्स के बीच में, या जो बॉन्ड पेयर्स है, लोन पेयर्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी रिपल्सन उतना कम होगा. और रिपल्सन जितना कम होगा मॉलिक्यूल उतना स्टेबल होगा. तो किसी भी मॉलिक्यूल की क्या टेंडेंसी है, स्टेबल होना. तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या करेंगे, मिनिमम रिपल्सन फील करना चाहेंगे. देन द वैलेंस शेल इज टेकन एज अ स्फीयर विद इलेक्ट्रॉन पेयर
लोकलाइजिंग ऑन द स्फेरिकल सरफेस एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर। कि यदि हम ये मान के चलें कि जो वैलेंस सेल है उसको स्फेरिकल मान के चलें, तो स्फीयर में क्या होगा, अब स्फीयर में यदि हमको 2 पॉइंट रखना है, ठीक है, एटम को छोड़ते हैं, हम एक सिंपल बॉल लेते हैं। बॉल में यदि हम कहते हैं एक फुटबॉल लेते हैं, उस बॉल में यदि हम कहें कि आपको 2 छोटी छोटी बॉल को रखना है, तो आप उनके बीच मैक्सिमम डिस्टेंस कैसे रख सकते हो? मैक्सिमम डिस्टेंस रखने के लिए सीधा सा तरीका है, एक को आप नॉर्थ पोल में रख दो, एक को साउथ पोल में रख दो, मतलब जस्ट अपोजिट। तो जस्ट अपोजिट रखेंगे, उनके बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम हो गई। तो उसी टाइप से इलेक्ट्रॉन्स भी रहते हैं कि स्फीयर में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो नहीं कि सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन पेयर हों, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो सब इस टाइप से अरेंज रहेंगे कि उनके बीच में रिपल्सन मिनिमम होगा। ओके, नेक्स्ट पोस्टुलेट इज अ मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज इफ इट इज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर। मतलब क्या कि यदि 2 एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो उसको भी हम सिंगल बॉन्ड मान के चलते हैं, ठीक है। इसमें स्ट्रक्चर बनाने के लिए चाहे वो डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको हम क्या मान के चलेंगे, सिंगल बॉन्ड, तब हम उसका स्ट्रक्चर बता सकते हैं। Where 2 or more resonating structures can represent a molecule, the Vesper model is applicable to any such structure। ये हमने इससे पहले कार्बोनेट में देखा था कि कार्बोनेट में 3 अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, बट जब हम इसमें वेस्पर थ्योरी बताएंगे तो आप देखना कार्बोनेट के स्ट्रक्चर्स आप देखो, 3 जो हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, सबके बीच में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का है। आप चाहे इलेक्ट्रॉन पेयर्स को कहीं भी, डबल बॉन्ड को कहीं भी शिफ्ट करो, आपने देखा होगा वो हमेशा एक ट्रायंगल के फॉर्म में ही मिला है। तो इसका मतलब क्या, जो वेस्पर थ्योरी है वो हर एक स्ट्रक्चर के लिए एप्लीकेबल है। सो दीज आर द पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी। नाउ वी विल सी द एग्जांपल्स ऑफ सम मॉलिक्यूल्स हैविंग ओनली बॉन्ड पेयर्स और उनका स्ट्रक्चर देखेंगे। सो चलिए देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग ओनली बॉन्ड पेयर्स। ये जो कंसेप्ट है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग ओनली बॉन्ड पेयर्स, ये इसको हम एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर मान के चलते हैं, ठीक है। किसी भी मॉलिक्यूल को आपको किससे कंपेयर करना है, ये यहाँ पर जो हम लिखा अभी देखने जा रहे हैं इन्हीं से कंपेयर करना है। तो यहाँ पर पहले हम कुछ पॉइंट्स बनाते हैं, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, देन सेकेंड इज नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, देन ज्योमेट्री, देन उसका स्ट्रक्चर, और लास्ट में होगा एग्जाम्पल। यहाँ पर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से क्या मतलब, तो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से मतलब ये है, इन नेचर अ नंबर ऑफ कंपाउंड्स आर देयर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर देयर। ओके, तो हम सारे मॉलिक्यूल्स की तो स्टडी कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, उन मॉलिक्यूल्स को कैटेगराइज करते हैं। कैटेगराइज किस में, ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर ऑफ एटम्स। तो जब नंबर ऑफ एटम्स के बेस पे आप उनको क्लासीफाई कर लेंगे तो फिर यहाँ पर हम क्या देखेंगे, जब आप नंबर ऑफ एटम्स के बेस पर क्लासीफाई कर दिए तो उनको अलग अलग कैटेगरी में डालेंगे। फर्स्ट कैटेगरी होती है AB2। AB2 के एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, तो AB2 के एग्जाम्पल जैसे कि BeCl2, BeF2, CaCl2, MgCl2। तो इन सब में क्या है, एक सेंट्रल एटम है और 2 अदर एटम्स हैं। तो इस टाइप के कैटेगरी के मॉलिक्यूल्स के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इनमें सबसे पहले हम देखें कि नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स कितने होते हैं, 2। ज्योमेट्री क्या होती है इसकी, लीनियर। स्ट्रक्चर क्या होता है, इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, लीनियर। और एग्जांपल क्या होगा इसका, BeCl2। तो सबसे पहले हम BeCl2 का फॉर्मेशन देखते हैं कैसे होता है। तो ये आपको मालूम है कि Be, इसके पास लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो Be के लास्ट में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक और एक, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स। देन इससे हमको क्या कनेक्ट करना है, 2, इसमें हमको Cl कनेक्ट करना है। तो ये हो गया एक Cl, ये हो गया दूसरा Cl। अब क्लोरीन में आपको मालूम है कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर करेगा। इसी टाइप से 1 2 3 4 5 6 और एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर शेयर करेगा। तो ऐसी कंडीशन में ये जो शेयर्ड हो रहे हैं ना, इनको हम कहते हैं क्या, बॉन्ड पेयर। यहाँ पर ये जो शेयरिंग हो गई इनको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर, ठीक है। और ये जो हमारे पास अभी 3 पेयर बच रहे हैं इनको हम कहते हैं लोन पेयर। ये क्या है, लोन पेयर, ये भी क्या है, लोन पेयर, और ये भी क्या है, लोन पेयर, ठीक है। और ये क्या हो गए, बॉन्ड पेयर। तो ये इसके हो गए लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स। ओके।
तो अब इसमें आप देखो कि ऑर्बिटल्स के बीच में इनकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, क्योंकि जो पोस्टुलेट्स में लिखा था कि ऑर्बिटल्स मैक्सिमम डिस्टेंस में रहना चाहते हैं। अब मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा, तो मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए आप देखिए कि ये जो हमने लिखा अभी यहाँ पर बी ई, तो इसमें हम अलग अलग पॉसिबिलिटी देखते हैं। फर्स्ट इस टाइप से भी बना सकते हैं इसको, तो यहाँ पर रिपल्सन कितना होगा, यहाँ पर बॉन्ड एंगल बनेगा 90 डिग्री का, और इस साइड से रिपल्सन देखें तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल बनेगा 270 डिग्री का। तो दोनों साइड तो रिपल्सन इक्वल नहीं है ना, क्योंकि बॉन्ड एंगल इक्वल नहीं आ रहा है। तो बॉन्ड एंगल इक्वल कब बनेगा, जब ये किस फॉर्म में रहेगा, इस तरीके से रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री, और यहाँ पर भी कितना बनेगा एंगल 180 डिग्री। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है कि यदि टाइप ऑफ मॉलिक्यूल क्या है AB2, और उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। लोन पेयर क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर था ना, पर हमको लोन पेयर किसके ऊपर देखना है, सेंट्रल एटम के ऊपर, कि सेंट्रल एटम में ही हमको लोन पेयर और बॉन्ड पेयर देखना है। बाकी उसके साथ जो मॉलिक्यूल अटैच है उनसे हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ सेंट्रल एटम को देखना है। तो सेंट्रल एटम के पास सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर हैं, तो ये उसका स्ट्रक्चर होगा। इसके बाद सेकेंड कैटेगरी, तो सेकेंड कैटेगरी होती है AB3 टाइप। AB3 टाइप में हमें कितने मिलेंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स आर 3, तो इसका स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, और ट्राइगोनल प्लेनर का स्ट्रक्चर होगा इस टाइप से। ये एक हम ट्राइंगल बनाएंगे, और ट्राइंगल के कॉर्नर्स पे क्या लिखना हमको, B, तो A और B के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। ये बन गया एक ट्राइंगल। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। देन बीच में जो पिक्चर्स मैं प्ले कर रहा हूँ, उन पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि इनका हम बॉल एंड स्टिक मॉडल के थ्रू कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे मॉलिक्यूल्स दिखते हैं एक्चुअली इन नेचर। ठीक है, तो ये हो गया ट्राइगोनल प्लेनर। एग्जाम्पल इसके हैं BeCl3, BF3। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 बॉन्ड पेयर हैं। अभी देखिए आप, इसमें हम एग्जाम्पल कौन सा ले रहे हैं, BF3 का एग्जाम्पल लेते हैं। तो बोरॉन एटॉमिक नंबर 5 मतलब 2 3, तो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स। एक एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ रहेगा, यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ। तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस देखो अभी तीनों में इक्वल है। तो ये शेप कैसा मिल रहा है, ये शेप मिल रहा है हमको ट्राइगोनल, और बॉन्ड एंगल कितना मिलेगा 120 डिग्री। ठीक है, तो हम अभी इनका शेप याद रखते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर। आफ्टर दैट नेक्स्ट कैटेगरी इज AB4। इन AB4 number of bond pairs are 4, structure is tetrahedral, and tetrahedral structure means like this. Okay, you can see in video also how this structure is looking. So ये बन गया एक tetrahedral। एग्जाम्पल इसका हो गया CH4 NH4 प्लस। इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 हमारे पास क्या मिलेंगे, बॉन्ड पेयर्स मिलेंगे। ठीक है, आफ्टर दिस 4 पेयर्स नेक्स्ट एग्जाम्पल है AB5। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स आर 5। अभी नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स हम कहाँ से काउंट कर रहे हैं, जितने भी नंबर ऑफ B एटम्स है ना, वही नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर है। स्ट्रक्चर होता है इसका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसे मिलेगा, तो ये हमने बना लिया इसमें एक ट्राइंगल। ये ट्राइंगल कहाँ बनेगा, तो एक आप सपोज एक टेबल लेते हैं, तो टेबल का सरफेस आपको दिख रहा है। ठीक है, इमेजिन करना है इसको, थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर चाहिए इसमें, वीडियो में आप देख सकते हैं। और तो एक टेबल लिया हमने, टेबल में बनाना हमको एक ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के कॉर्नर्स पे आप लिख दीजिए B, और ट्राइंगल के सेंटर में लिख दीजिए A। तो ये बन गया एक ट्राइगोनल प्लेनर। अब उसी A से एक एटम को ऊपर बॉन्ड बनाना है। ठीक है, एक एटम को कहाँ, A के ऊपर रखना है, और एक एटम को A के नीचे, मतलब अबव द टेबल बिलो द टेबल। इसको हम कहते हैं अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। तो जब अबव द प्लेन आप बनाएंगे और बिलो द प्लेन, तो इस टाइप से इनको हम बनाएंगे। ये एक अबव द प्लेन है और एक बिलो द प्लेन है। देन फिर इसके बाद अब इनको आप ज्वाइन करो, तो ये बाइपिरामिडल वर्ड क्यों यूज़ किया हमने, तो आपने देखा है इजिप्ट के जो पिरामिड्स हैं, वो पिरामिड्स कैसे दिखते हैं, ठीक ऐसे ही दिखते हैं। ठीक है, कि ये अर्थ पे एक पिरामिड बनाए हुए हैं, तो पिरामिड आपको दिख रहा है इसमें क्लियर। तो एक पिरामिड अबव द प्लेन मिलेगा और एक पिरामिड बिलो द प्लेन। तो ये हो गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एग्जाम्पल है PCl5। नेक्स्ट इज AB6। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स आर 6।
इसका स्ट्रक्चर होता है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कैसे बनाएंगे, तो फिर से आप देखिए, टेबल में एक स्क्वायर बनाइए आप, और स्क्वायर के कॉर्नर्स में किसको लिखना है, बी को, इस टाइप से। ये एक स्क्वायर बना, स्क्वायर के कॉर्नर्स में है बी और सेंट्रल में है ए, तो ए के साथ 4 बी दिख गए। अब एक बी को कहाँ ऐड करना है, अबव द प्लेन, और एक बी को बिलो द प्लेन। ठीक है, तो यहाँ हमको, अभी हम अबव द प्लेन की बात कर रहे हैं, तो टेबल के जो 4 कॉर्नर्स आपको दिख रहे हैं, स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स, और एक सेंटर से ऊपर है, तो जब इस ऊपर वाले बी से आप टेबल के चारों कॉर्नर को कनेक्ट करेंगे तो आपको कितने यहाँ पर फेस मिलेंगे, 4 फेस मिलेंगे। ठीक है, तो अबव द प्लेन 4 फेस मिलेंगे, इसी टाइप से बिलो द प्लेन 4 फेस मिलेंगे। तो ये स्ट्रक्चर होता है ऑक्टाहेड्रल। कैसे मिलेगा, तो ये इस टाइप से मिलेगा। चारों बी को हमने ऊपर वाली बी से कनेक्ट किया, और फिर इन चारों बी को हमने नीचे वाली बी से कनेक्ट किया, तो ये हो गया ऑक्टाहेड्रल। एग्जाम्पल है इसका SF6। और लास्ट कैटेगरी है AB7। AB7 में क्या होगा, तो AB7 में नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स आर 7। स्ट्रक्चर होता है इसका पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल कैसे बनेगा, तो फिर से टेबल में आप एक पेंटागोन बनाइए, तो ये बन गया पेंटागोन। पेंटागोन के कॉर्नर्स में बनाइए बी, ए से इनको कनेक्ट कर दीजिए। फिर 5 बी हो गए ना, 6th बी कहाँ रहेगा, अबव द प्लेन, और 7th बी कहाँ रहेगा, बिलो द प्लेन। तो फिर से इनको आप मिलाएंगे, तो पेंटागोन तो आपको क्लियर दिख रहा है। एक पिरामिड अब ऊपर बनेगा, जब ऊपर वाले बी से पेंटागोन के सारे कॉर्नर्स को आप कनेक्ट करेंगे, तो एक पिरामिड ऊपर मिलेगा और एक पिरामिड नीचे मिलेगा। तो ये हो गया पेंटागोनल बाय पिरामिडल। एग्जाम्पल है इसका IF7। ये है स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल्स, कि यदि आपको अब हम कोई भी मॉलिक्यूल देते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर्स हैं, ठीक है, जैसे मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ PF5, तो PF5 का स्ट्रक्चर क्या होगा, PF5 कौन सी कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, AB5 कैटेगरी को। तो PF5 का स्ट्रक्चर क्या है, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, तो इस टाइप से हमने सिर्फ अभी हमारे पास टोटल 6 कैटेगरी हमने बनाई, उस 6 कैटेगरी में हम मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। पर उन मॉलिक्यूल्स में क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर्स। अब हम देखते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें बॉन्ड पेयर्स के साथ साथ लोन पेयर्स भी हैं। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स। तो यहाँ पर हम बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों को यूज करेंगे। तो फिर से पहले हम ये टर्म्स लिख लेते हैं। इसमें कौन से टर्म्स जो हमने इससे पहले पढ़े हैं। पहला इसमें क्लासिफिकेशन हम करेंगे AB2E। देखिए AB2E में आप बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कैसे देखेंगे, तो सिंपल सा है। B, तो नंबर ऑफ B ये है बॉन्ड पेयर, और नंबर ऑफ E ये है लोन पेयर। तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितना है 2, नंबर ऑफ लोन पेयर कितना है 1। तो 2 और 1 टोटल कितने पेयर्स हो गए 3। ठीक है, जब टोटल पेयर्स 3 हो गए तो 3 पेयर्स के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है, जो हमने क्लासिकल स्ट्रक्चर पढ़ा है। तो जब टोटल नंबर ऑफ पेयर्स आर 3 तो स्ट्रक्चर होता है उसका ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है, वहां पर 3 बॉन्ड पेयर मिल रहे थे, यहां पर 2 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इसमें भी एक इसका स्ट्रक्चर बेंट है, कैसे वो देखते हैं अभी। इसमें हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक वैसे ही ट्रायंगल है, 2 में हम बी लिखेंगे और 1 में क्या लिखेंगे लोन पेयर। हो गया स्ट्रक्चर, है ये वही ट्रायगोनल ही है, लेकिन ट्रायगोनल में क्या हो रहा है, एक लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर हैं। अब इसका स्ट्रक्चर हम बेंट क्यों कह रहे हैं, बेंट इसलिए कह रहे हैं कि जब भी आप किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बताएंगे तो उसमें लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं। तो जब लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे तो केस क्या बनेगा, ए और यहाँ पर क्या रहेगा, ये 2 बी। लोन पेयर को हमें नहीं देखना है। तो ये स्ट्रक्चर कैसा हो गया, बेंट। बेंट क्योंकि ये कैसा है, बेंट है, ये स्ट्रेट होता, पर ये स्ट्रक्चर कैसा है, बेंट है। तो ये इस टाइप की कैटेगरी वाले जो एग्जांपल्स मिलेंगे उनमें स्ट्रक्चर कैसा होगा, बेंट स्ट्रक्चर होगा। ओके, देन एग्जांपल इज SO3 एंड O3। ये बेंट स्ट्रक्चर कैसे मिल रहा है ये हम आगे देखेंगे। सेकेंड कैटेगरी AB3E, मतलब 3 बॉन्ड पेयर और एक लॉन पेयर। टोटल पेयर्स कितने हो गए 4 पेयर्स हैं, तो स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। बट यहाँ टेट्राहेड्रल नहीं मिलेगा, यहाँ पर स्ट्रक्चर मिलेगा हमको ट्राइगोनल पिरामिडल। क्यों, तो ये देखिए आप, टेट्राहेड्रल में क्या होता है 1 2 3,
और एक ऊपर होता है बॉन्ड, लेकिन उस बॉन्ड पेयर की जगह क्या है, लोन पेयर है। तो अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर समझने के लिए फिर से हम आते हैं। ये बना लिया हमने ए और ये हो गए बी। तो ये भी कैसे रहेंगे, ये भी एक प्लेन का फॉर्मेशन करते हैं, ये भी क्या है, एक प्लेन का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर। तो इस वजह से यहाँ पर एक पिरामिड बनेगा, यहाँ पर हम लिखेंगे बी। तो ये जो हमने अभी यूज़ किया ना, ये क्या है, ये है एक प्लेन, ठीक है, ये क्या है, एक प्लेन। इस प्लेन में हमने 3 बी को रखा हुआ है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे इस पिरामिडल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ओके, देन एग्जाम्पल फॉर दिस पिरामिडल स्ट्रक्चर, दीज आर NH3। आफ्टर दिस नेक्स्ट इज AB2E2। इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स 2, नंबर ऑफ लोन पेयर्स 2। स्ट्रक्चर इसका होता है बेंट, ठीक है। बेंट स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो फिर से देखते हैं हम। टोटल नंबर ऑफ पेयर्स आर 4 पेयर्स है, मतलब स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, टेट्राहेड्रल। आप वही रेफरेंस को याद रखना जो हमने फर्स्ट में मॉलिक्यूल बनाए थे जिसमें सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर था, उसको नोट कर लीजिए। फिर जब 4 की बात करेंगे हम, 4 पेयर्स होंगे तो स्ट्रक्चर सीधे टेट्राहेड्रल को रेफर करना। अब उन टेट्राहेड्रल में कहाँ कहाँ एटम्स को रखना है, तो यहाँ हमने रख दिए 2 एटम्स को, और बाकी जो 2 बॉन्ड बचे उन 2 बॉन्ड की जगह क्या आएगा, यहाँ पर लोन पेयर्स आएंगे। तो इस टाइप से लोन पेयर होगा। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, फिर से बेंट स्ट्रक्चर है, क्योंकि जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं। तो ये हो गया स्ट्रक्चर इसका बेंट। एग्जाम्पल है H2O। फुल एक्सप्लेनेशन हम इसका NH3H2O का अभी आगे देखेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी है AB4E1, मतलब 4 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है। इसका स्ट्रक्चर होता है सीसॉ स्ट्रक्चर, ठीक है। एग्जाम्पल इसका, तो इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से बनेगा। ये एक ट्रायंगल, क्योंकि 5 बॉन्ड पेयर है, मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। तो ट्रायगोनल का ये ट्रायंगल बन गया, लेकिन इस ट्रायंगल में क्या करेंगे, एक हम लिखेंगे LP, देन अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन। तो ये स्ट्रक्चर कैसा मिल रहा है, सीसॉ टाइप का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे 2 एटम्स हैं और एक लोन पेयर है, मतलब 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, और बाकी 2 बॉन्ड पेयर कहाँ रहेंगे, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। एग्जाम्पल है इसका SF4। ये सारे एग्जाम्पल्स को डिटेल में हम आगे देखेंगे, और आप वीडियोस में देख सकते हैं कि ये एक्चुअली दिखते कैसे हैं, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी, this one is structure of molecules having bond pairs and lone pairs. So next category of molecule, this one is AB3E2। इसमें number of bond pairs 3, number of lone pairs 2। तो 3 और 2 5 इसमें क्या हो गए, इसमें 5 हो गया हमारे पास पेयर्स। तो जब 5 पेयर्स है तो स्ट्रक्चर होना चाहिए इसका पेंटागोनल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बट इसका स्ट्रक्चर होता है टी शेप्ड। क्यों टी शेप्ड, तो ये इसका रीज़न मिलेगा हमको कि इसमें 2 लोन पेयर्स कहाँ मिलेंगे, ट्राइगोन के कॉर्नर्स पे और अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसको समझना है हमको। ये हम पहले बनाते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। एग्जाम्पल उसका PCl5 था या AB5 था ना। तो ये देखिए ये हो गया ट्रायंगल के कॉर्नर्स, ये बन गया एक ट्रायंगल एक प्लेन में, ये हो गया अबव द प्लेन और ये हो गया बिलो द प्लेन, ठीक है। अब इसमें आप देखो एंगल कितना होगा, तो जब आप इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो ट्रायंगल में यहाँ पर एंगल कितना मिलेगा, 120 डिग्री। ये एंगल कितना मिलेगा, 120 डिग्री, और ये एंगल कितना मिलेगा, 120 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये सब क्या है, एक ट्रायंगल बना रहे हैं, तो ट्रायंगल में तो 120 डिग्री होगा। और जो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन है, तो अबव द प्लेन मतलब ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 90 डिग्री का। ठीक इसी टाइप से ये एंगल कितने का होगा, ये एंगल भी होगा 90 डिग्री का। तो अब हमको लोन पेयर को रखना है, तो लोन पेयर को कहाँ रखेंगे हम, अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन। यदि हम लोन पेयर को अबव द प्लेन रखते हैं, कहाँ रखते हैं, अबव द प्लेन, मतलब कहाँ पर, यहाँ पर लोन पेयर को रखते हैं, तो रिपल्सन कितना होगा 90 डिग्री का। और यदि यहाँ पर रखते हैं तो रिपल्सन कितना होगा 120 डिग्री का। तो रिपल्सन मतलब डिस्टेंस 120 की ज़्यादा है, तो यहाँ पर रिपल्सन कम होगा। तो मॉलिक्यूल की टेंडेंसी क्या है, पोस्टुलेट में हमने पढ़ा था कि द ऑर्बिटल्स और द बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर दे आर अरेंज्ड इन द स्पेस इन सच अ मैनर टू मिनिमाइज द रिपल्सन।
और रिपल्सन मिनिमम होने के लिए क्या चाहिए, डिस्टेंस मैक्सिमम होना चाहिए, और डिस्टेंस को हम सीधे सीधे बॉन्ड एंगल से देखते हैं। तो 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर, डिस्टेंस कम है इसमें, और 120 मतलब डिस्टेंस इसमें ज़्यादा है, तो 120 में रिपल्सन कम होगा, वो स्टेबल होगा। इसीलिए लोन पेयर्स कहाँ मिलेंगे हमको, ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे। तो यहाँ पर हमने बना दिया, यहाँ पर बना दिया लोन पेयर्स, और यहाँ पर क्या बना दिया, बॉन्ड पेयर, और फिर बाकी जो दो बचे उनको भी यहाँ पर बनाएंगे। तो ओवरऑल रिपल्सन क्या होगा, कम होगा। तो ये स्ट्रक्चर है। अब इसको टी शेप्ड क्यों कह रहे हैं, फिर से जब हम शेप की बात करते हैं तो शेप में क्या करते हैं, हम इनको बॉन्ड पेयर्स को हम अकाउंट में नहीं लेते हैं। तो जब आप बॉन्ड पेयर को अकाउंट में नहीं लेंगे तो ये स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ये देखो अब ये क्या दिख रहा है, टी शेप्ड दिख रहा है, दिख रहा है टी शेप्ड। इसको आप ऐसे बना लो, ये देखो टी शेप्ड दिख रहा है, 1 2 3 और यहाँ पर ए, तो ये हो गया टी शेप्ड स्ट्रक्चर। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ AB3E2 type molecule. The example is ClF3. Next one is AB5E1. So total number of bond pairs 5, total number of lone pair 1. So total number of pairs are 6. 6 मतलब octahedral. octahedral में फिर से आप octahedral को सामने इमेज करना है, ठीक है। octahedral मतलब एक स्क्वायर, स्क्वायर के कॉर्नर्स पे बी, एक बिलो द प्लेन और अबव द प्लेन क्या करना है, हमको लोन पेयर रखना है। तो यहाँ लोन पेयर को जब आप छोड़ देंगे तो एक स्क्वायर बनेगा और एक पिरामिड नीचे की तरफ बनेगा, तो ये हो गया स्क्वायर पिरामिड। एग्जाम्पल इसका BRF5। एंड लास्ट वन इज AB4E2। AB4E2 में क्या होगा, 4 बॉन्ड पेयर्स 2 लोन पेयर्स। इसका स्ट्रक्चर होगा स्क्वायर प्लेनर। क्यों, सीधा सा है, 4 स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पे बी, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन हमको लोन पेयर्स को लगाना है। तो इसका स्ट्रक्चर होगा स्क्वायर प्लेनर। एग्जाम्पल इज XeF4। सो ये है हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें लोन पेयर भी है और बॉन्ड पेयर भी है। सिर्फ इन्हीं कैटेगरी में, जो हमने फर्स्ट कैटेगरी देखी ओनली बॉन्ड पेयर्स एंड सेकेंड बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर्स, इन्हीं कैटेगरी में सारे के सारे मॉलिक्यूल्स का आप स्ट्रक्चर बता सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ ये क्वेश्चन आता है कि ये जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर जब हो जाते हैं तो क्यों ये स्ट्रक्चर चेंज होता है। तो उसका रीज़न हमको मिलेगा कुछ और एग्जाम्पल्स से। सो लेट्स सी एक्सप्लेनेशन फॉर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। फर्स्ट इसमें हम देखेंगे SO2 कि SO2 देखने से लग रहा है BeCl2, दिख रहा है ना, BeCl2 मतलब लीनियर स्ट्रक्चर होना चाहिए, पर SO2 का लीनियर स्ट्रक्चर नहीं है। तो इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट क्यों है, चलिए देखते हैं हम इसका रीज़न। सिंस 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर प्रेजेंट, hence structure should be trigonal bipyramidal, but sulfur is bonded with 2 oxygen atoms by double bond, hence it has 1 LP in place of BP, and due to more repulsion between LP which is more than BP repulsion, the structure becomes bent। तो अब देखिए इसमें हमने समझाना क्या चाहा है। सबसे पहले देखते हैं हम सल्फर। सल्फर के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन की, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन शेयर कर लेगा। दूसरे ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन की। तो सल्फर में बॉन्ड पेयर कितने मिल रहे हैं, 1 2 3 4, 4 तो हो गए बॉन्ड पेयर, और ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है लोन पेयर, ठीक है, कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता लेकिन वैलेंस शेल में है, वो कहलाता है बॉन्ड पेयर। तो इस एक लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर, तो ये टोटल कितना हो गए, 5 पेयर्स हो गए। लेकिन 5 पेयर्स में देखना है कि हमने पोस्टुलेट में देखा था कि यदि डबल बॉन्ड है कहीं तो उस डबल बॉन्ड को हमको क्या मान के चलना है, सिंगल बॉन्ड मान के चलना है, ठीक है। डबल बॉन्ड को क्या मान के चलेंगे हम, सिंगल बॉन्ड। तो इस हिसाब से सल्फर यहाँ पर एक, यहाँ पर एक और यहाँ पर है लोन पेयर। तो ये स्ट्रक्चर कैसा है, ये स्ट्रक्चर है बेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यही बेंट स्ट्रक्चर हमको इसमें बनाना है। सी कैसे, सल्फर, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक लोन पेयर, तो ये इसके कारण इसका स्ट्रक्चर कैसा है, बेंट। देन नेक्स्ट वन इज NH3। सो इन केस ऑफ NH3 टोटल नंबर ऑफ पेयर्स आर 4, सो स्ट्रक्चर शुड बी टेट्राहेड्रल बट इट्स स्ट्रक्चर इज पिरामिडल। क्यों ऐसा हो रहा है, तो उसका रीज़न हम देखते हैं, ठीक है। चलिए रीज़न क्या होगा इसका, बहुत सिंपल सा, नाइट्रोजन।
नाइट्रोजन में एटमिक नंबर है 7, मीन्स कन्फिग्रेशन इज 1s2, 2s2 एंड 2p3। 2s2 को हम बनाएंगे और ये 2p3 को बनाएंगे। 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब इसमें आप देखोगे तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन का, ये 3 हाइड्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो यहाँ पर हमको 3 मिल रहे हैं बॉन्ड पेयर और एक क्या मिल रहा है, लोन पेयर। तो टोटल पेयर्स कितने हो गए, 4। ये लिखा है 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर प्रेजेंट। तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। सेंटर में यहाँ पर होगा सेंट्रल एटम और यहाँ पर 4 अलग अलग एटम्स होंगे। तो इस केस में अब देखना, यहाँ पर तो हो जाएगा नाइट्रोजन, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो गया नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, तो 3 हाइड्रोजन हो गए। लेकिन अब क्या बचा, ये लोन पेयर। तो लोन पेयर कहाँ जाएगा, अबव द प्लेन क्या रहेगा, लोन पेयर। तो ये स्ट्रक्चर है पिरामिडल, ठीक है। चलिए देखते हैं ये स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। नाइट्रोजन, इसमें ट्राइगोन के 3 बेस, 3 हाइड्रोजन और एक इसमें रहेगा लोन पेयर। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ NH3। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ ClF3। तो ClF3 के स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने, 5। कैसे, सिंस 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर प्रेजेंट। अब 5 इलेक्ट्रॉन्स पेयर कैसे हो रहे हैं, चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। क्लोरीन, क्लोरीन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स। उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन इसने फ्लोरीन के साथ शेयर कर लिया, तो बचे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो 3 तो हो गए इसमें बॉन्ड पेयर, 3 क्या हो गए इसमें, 3 हो गए बॉन्ड पेयर। और बचे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 हो गए इसमें लोन पेयर। तो 3 और 2 कितना हो गया, 5 इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। इन 5 में 3 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं। तो जब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों प्रेजेंट है तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए ट्राइगोनल और बाय पिरामिडल। बट इस कंडीशन में सिर्फ 3 फ्लोरीन हैं, तो एक फ्लोरीन यहाँ रहेगा, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, और इन 2 की जगह क्या रहेगा, यहाँ पर लोन पेयर रहेगा, ठीक है। तो लोन पेयर होने से ये इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, टी शेप्ड। ये हमने अभी पहले भी देखा था। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या मिलेगा हमको, क्लोरीन 1 2 3 फ्लोरीन और 2 लोन पेयर। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ ClF3। नेक्स्ट इज SF4। SF4 में आप देखेंगे कितने, सिंस 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर प्रेजेंट, hence structure should be trigonal bipyramidal, but it has only LP in place of BP, hence due to more repulsion the structure becomes seesaw। कैसे, तो फिर से देखते हैं हम। सल्फर के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहा है, तो 4 मिलेंगे हमको बॉन्ड पेयर। बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक क्या मिलेगा हमको, एक मिलेगा हमको लोन पेयर। तो 4 और 1 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो गए, जिनकी बात यहाँ पर किया है इसने, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, तो स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए इसका, ट्राइगोनल बायपिरामिडल, मीन्स इस टाइप से मिलना चाहिए। ये 1 2 3 4 5। लेकिन इनमें अभी हमने देखा इसमें क्या है, 4 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है। तो 4 बॉन्ड पेयर कहाँ मिलेंगे, एक फ्लोरीन यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और यहाँ क्या आएगा, लोन पेयर। क्यों, क्योंकि जब यहाँ लोन पेयर आएगा तो ये रिपल्सन कितना होगा, 120 डिग्री के आसपास। जबकि यहाँ पर यदि इसको हम लोन पेयर को रखते हैं तो ये रिपल्सन कितना होगा, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री इसमें ज़्यादा रिपल्सन होगा, 120 में कम रिपल्सन है, तो 120 वाली कंडीशन ज़्यादा स्टेबल है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये स्ट्रक्चर मिलेगा हमको सीसॉ स्ट्रक्चर। चलिए देखते हैं कैसे। सल्फर में अबव द प्लेन और ये 4 फ्लोरीन और ये एक लोन पेयर। तो ये हो गया हमारे पास सीसॉ स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज H2O। तो H2O में क्या होगा, H2O में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, इसलिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, टेट्राहेड्रल। बट फिर से इसमें 2 LP हैं बॉन्ड पेयर्स की जगह,
तो LPBP में ज़्यादा रिपल्सन होगा, इसलिए इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा बेंट और बॉन्ड एंगल भी इसका कम हो जाएगा। रीज़न क्या है, तो रीज़न देखिए फिर से सिंपल सा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मतलब लास्ट में है इसके 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन किसने शेयर कर लिया, हाइड्रोजन ने, तो इसके पास क्या मिलेंगे, 2 बॉन्ड पेयर। अब बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन मतलब कितने लोन पेयर बनेंगे उससे, 2 लोन पेयर, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन मिलके 1 लोन पेयर बनाते हैं, तो टोटल पेयर्स कितने हो गए, 4 पेयर्स हैं। 4 पेयर्स मतलब स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, टेट्राहेड्रल। बट टेट्राहेड्रल में यहाँ पर तो 2 हाइड्रोजन है हमारे पास, 2 की जगह क्या आएगा, यहाँ पर इन 2 की जगह आएगा लोन पेयर। तो इन लोन पेयर्स को हम यदि अरेंज करें तो हमको स्ट्रक्चर कैसा मिलेगा, ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये 2 लोन पेयर मिलेंगी। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ H2O। ओके, नाउ अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ये स्ट्रक्चर से हमारे पास सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो अब हमको क्या करना है, एग्जाम में क्वेश्चन क्या रहेगा, एक आपको मॉलिक्यूल देगा, उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आपको बताना है। तो हमारा काम क्या रहेगा, सबसे पहले हम उसमें कैलकुलेट करेंगे लोन पेयर कितने हैं और बॉन्ड पेयर कितने हैं, और फिर उसके बाद उसमें स्ट्रक्चर उसका हम बताएंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। इफ यू हैव एनी डाउट you can ask to my personal WhatsApp number. Okay, thank you very much.